गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अमर सर नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। आनंद में। नो। एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है सर? हाँ सर। यस सर क्लियर। ना। टुडे we will study how to trade any timing candle. Okay. Now, so sir, before a start, we need to find certain sir breakout rule. Certain breakout criteria. Now, what kind of breakout and sir breakdown होती है? First of all, either previous day high or previous day low, breakout or breakdown. Previous month high, previous month low, previous quarter high, previous quarter low, 52 weeks breakout, lifetime high breakout, and any narrow range breakout or any other timing candle breakout, upside or the downside. Now, so what is the criteria you need to follow whether this breakout will be success or not? Now, so first of all, I will give you certain criteria to find whether this will be success or not. Now, first of all, breakout candle. Check if the price has broken previous day high or any support or resistance. Yeah, sorry, resistance breakout. First rule is there any candle formation with open equals to low? Open equals to low means what? Suppose here it is the resistance area. Any candle has given breakout and either sir breakout candle or previous any candle up to 6 candle you can take. Is there any open where the price has opened and this open price or low दोनों समान हो गए? So first criteria, if this happens, it is the chance that market is under the control of the buyers. सेलर्स को एक वीक्स तक बनाने का मौका नहीं दे रहे। नंबर वन क्राइटेरिया। एंड नाउ similar for the downside, open equals to 5. Second one is your volume confirmation. If any number one volume bar
तो क्या ये वाली आइदर वॉल्यूम हैज, जो हमारी वॉल्यूम की बार है, क्या ये वॉल्यूम की बार बड़ी है? सो यू कैन अप्लाई 36 EMA फॉर द इंट्राडे एंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन द वॉल्यूम बार। समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल से पहले अप टू 6 कैंडल्स वॉल्यूम पहले आता है, इसके बाद सर ब्रेकआउट होता है। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो increase in volume before breakout, increase in volume. Now, third, there are two things on the chart. Now, post breakout candle, look at second or third candle after breakout. If it closes above the breakout candle, high chances price will not retest breakout zone and will move aggressively. And even if the retest happens, trade is still likely in your favor. Means suppose it is your timing candle. Price has given breakout above. Okay, nice. And if second or third candle closes above the high of this candle, which confirms that maximum time price will not come to retest and it will move aggressively. Now, is there any FVG or BAG gap? अमर सर। हाँ, हेलो। यस, ये एफवीजी जो है ना, कहीं कहीं पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप कुछ मैं बता एग्जांपल्स रहा हूँ, बताएंगे? हाँ, जहाँ मैं पे सर बता रहा हूँ, मैं सर गलत बता रहा हूँ। एफवीजी, राइट एफवीजी। ओके ओके। एक सेकेंड, लिसन करें, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। FVG मीन्स फेयर वैल्यू गैप, नेम इज फेयर वैल्यू गैप। गिव मी 1 second टाइम। Now, ABG means fair value gap. And sir, BAG means, can anyone say? breakaway gap. Breakaway gap. Nice. Breakaway gap. Now, what is the actual difference between this? Now, all this criteria, why to teach? It actually decides कि मार्केट किसकी कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स। देन वी विल प्लान फॉर द एंट्री। तो फर्स्ट एफवीजी गैप, एफवीजी गैप इज अ गैप if it is your first candle, it is your second candle, and it is the third candle. Now, so if first candle high and थर्ड कैंडल की जो लो है, ये लो पॉइंट,
If there is a gap created between this, it is called AVG gap, fair value gap. What does it indicates? It indicates that कुछ aggressive market buy orders has been placed. Means फर्स्ट क्राइटेरिया ओपन इक्वल्स टू लो, सेकंड क्या है कि वॉल्यूम है, थर्ड इज एंड फोर्थ अगर एफबीजी है और अगर अप साइड का ब्रेकआउट है, वी कैन से मार्केट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बायर्स, मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है ना, सो इट इज कॉल्ड एफबीजी गैप. नेक्स्ट, व्हाट इज बीएजी? इन केस ऑफ एफबीजी गैप, प्राइस जो ये वाली सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज नहीं होगा, थर्ड कैंडल मस्ट नॉट क्लोज अबव द हाई ऑफ द दिस कैंडल, तो इसको हम लोग एफबीजी बोलते हैं. और इफ इट इज लाइक दिस, इट इज अ and then if the next candle closes above the high of this, at that time इसका हाई और इसकी लो के नीचे, फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, and if third candle closing above the high of this candle, then it is called breakaway gap. And if it happens, अगर ऐसा होता है breakaway gap, तो मैक्सिमम टाइम प्राइस विल नॉट कम टू रिटेस्ट और वो एक वन साइडेड निकल जाएगी. सो इट इज अ वैलिड एंड स्मूथ कंट्रोल ऑफ बायर्स, एंड इट इज एग्रेसिव कंट्रोल ऑफ बायर्स. बायर्स आर मोर एग्रेसिव देयर. इट इज क्लियर? आगे हम लोग चार्ट पर देखेंगे, ठीक है, पूरी पढ़ेंगे. राइट नाउ इट इज क्लियर, एफबीजी एंड बीएजी. सो इन केस ऑफ सर इसका बीएजी वाले थोड़ा एक बार बताइए ना सर. सर मैं जो समझ पाया, बीएजी में इन केस हाँ ऑफ हाँ, बीएजी रिटेस्ट करने के लिए नहीं आता यूजुअली, और एफईजी के केस में वो मैक्सिमम रिटेस्ट कर. टाइम नहीं आता है प्राइस यस यस. रिटेस्ट करने के लिए ना. एफबीजी मींस फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में अगर जो आपके लिए गैप होता है, इट इज एफबीजी गैप. बट इन एफबीजी गैप, सेकंड कैंडल हाई के ऊपर में थर्ड कैंडल क्लोज नहीं होगा. क्लोज नहीं होगा मतलब ये उसके नीचे विक्स बन सकता है, लेकिन क्लोज इसके नीचे होगा, इसकी हाई के, देन इट इज एपीजी गैप. बट इन केस ऑफ अ ब्रेक अवे गैप, फर्स्ट कैंडल की हाई, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है. एंड ऑल्सो सेकेंड कैंडल हाई एंड इसके ऊपर में ये वाली कैंडल क्लोज होता है. इफ थर्ड कैंडल क्लोज अबव द हाई ऑफ द सेकेंड कैंडल, इन that case what the gap created, it is called breakaway gap. It is स्मूथ कंट्रोल ऑफ बायर्स बोल सकते हैं कि बायर्स के मतलब कि ना स्मूथ कंट्रोल में, ठीक, माइल्ड कंट्रोल में है. एंड इफ दिस हैपेंस, बायर्स आर मोर एंड मोर एग्रेसिव देयर, तो बायर्स का कंट्रोल में जाता है. सो इफ इट इज a BAG breakaway gap, price maximum time will not come to retrace the breakout level and it will move aggressively. Now, if you want, you can take screenshot. अदरवाइज बाद में भी आप मतलब अपने लिए बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही ना. नेक्स्ट, सॉरी. So if before sir breakout price or sir breakout level, if there is AVG gap or BAG gap, we shows buyers strength and success probability increases. Now,
Additional confirmation can be taken using any trendy indicator, Bollinger Band, हाफ ट्रेंड, उससे हम लोग ले सकते हैं कि ट्रेंड क्या बोल रहा है। आरएसआई से भी आप उसको कॉन्फर्मेशन ले सकते। इफ ऑल द बॉक्सेस आर चेक, टेक ट्रेड, अदरवाइज अगर एक दो मतलब ओनली मैच कर रहा तो अवॉइड द ट्रेड ना। सपोज मैं एक दो एग्जांपल देखता हूँ। Here we have here hmm, here we have previous day high। मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बता देता हूँ ना। Here Polycap started moving here and it has given breakout। So what is the chances कि ये ट्रेड मेरी फेवर में आएंगे? So number one, it has, if a small wicks are there you can conclude, अगर छोटा विक्स होता है तो उसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर वन थिंग, आप बिफोर दिस ब्रेकआउट अपने को तो जो भी ट्रेड लेना है रीटेस्ट पर लेना है, तो आराम से समय मिलता है हमको एनालिसिस करने का। नंबर वन थिंग इज दिस, 1 2 3 4 5 up to 6 candle has formed open equals to low, which shows buyers have taken control here from the sellers। यहां तक जो सेलर्स थे बायर्स के कंट्रोल में आ गए। यहां भी छोटी सी वीक्स है तो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। सेकेंड वन, इफ आई विल अप्लाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनपुट 36। So from this point, volume started closing above the high, और ये वॉल्यूम का जो बार है वो भी बहुत बड़ी है। ऑल्सो इवन योर ब्रेकआउट कैंडल, so it also shows that number one, open equals to high, which indicates market is under the control of buyers। second one, वॉल्यूम है और ये बड़ी है, which also indicates कि it is actual buying volume, it is not the fake volume। third one, you will analyze that when it has started rally here, it has created what I have told कि 6 बार पहले से भी वो एफवीजी या मतलब बीएजी गैप बनना शुरू हो जाता है। सो इफ यू विल एनालाइज क्लोजली between this candle and this candle, no, nothing, sorry, नहीं है यहां पर। this candle and after this breakout wait for the price to retest। so can we say कि इसके बीच में एक बीएजी का गैप बना हुआ है, इट इज कॉल्ड ब्रेक अवे गैप। Why? Because this candle has closed above the high of this candle, sorry, this candle। ठीक है सर, फर्स्ट कैंडल हाई, इसके बीच का गैप एंड इट इज द थर्ड कैंडल लो। सो इट तो इज माई, थोड़ा जूम इन कीजिए ना ताकि कैंडल थोड़ी और बड़ी लगे। थैंक यू बस। ठीक ना। सो हियर इट हैज गिवन फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, और इसके बीच में इतनी बड़ी गैप है, एंड ऑल्सो this candle closes above the high of this candle, so it is called
breakaway gap, and if it happens, what I have told that maximum time price will not come to retest previous day high level. Okay, no problem, low level. So if this happens, which also confirms that market is completely under the control of the buyers. Number one criteria match, number two match, number three match, and you can take also confirmation from any indicator. Suppose I have applied the Bollinger Band. No. So, so एलर्जी है sound mute yourself. So when the price has given breakout, so above this middle band, if it touch the upper band, we can say that मार्केट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बायर्स, और ये अपर बैंड को टच करते हुए जा रहा, तो ये भी अपर बैंड को यहाँ पर मेन बात है ब्रेकआउट किया, अपर बैंड को ब्रेकआउट किया, अपर बैंड को ब्रेकआउट किया. सो इट ऑल्सो कन्फर्म्स दैट कि इंडिकेटर ऑल्सो कन्फर्मिंग दैट नाउ आई एम बुलिश. सो हियर वी विल वेट फॉर द प्राइस टू रीटेस्ट एंड देन प्लान फॉर द ट्रेड. कि ये बायर्स का कंट्रोल में है तो ये ट्रेड मेरी फेवर में जाएंगे ना. सर इसमें तो रीसेट तो आएगा नहीं. हाँ? नहीं इसमें आया तो तो नहीं आया, रीटेस्ट. छोड़िए ना सर, पास्ट का डेटा है ना, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो पास्ट का डेटा है ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. ठीक अपने है. लोग सर, अपने लोग क्या है कि रूल फॉलो करेंगे, वो आए नहीं है इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं. सपोज हियर प्राइस हैज गिवन, नहीं ये नहीं, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाऊं तो ताकि वो कुछ चीजें क्लियर. हियर सपोज मैं बोल रहा हूं, मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइमिंग कैंडल ब्रेकआउट ना, तो मैं सबसे पहले ब्रेकआउट रूल्स को पढ़ा दूं ना. हियर अवॉइड फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग कैंडल. ओके, आफ्टर दैट प्राइस हैज गिवन ब्रेकआउट. ओके, वेट, because it is early morning candle, here open equals to low. No, number one thing. Number two things, whether it has volume. No. नंबर थ्री, कि ये अर्ली मॉर्निंग का है तो इसमें क्या है कि कोई मतलब मेरे लिए वो एफबीजी तो क्रिएट नहीं हुआ है. ठीक है, नाइस. सो वी विल वेट फर्दर. नाउ व्हेन आफ्टर दिस ब्रेकआउट आई विल नॉट consider here, but when this candle has formed, it is exact open equals to low. First criteria match. Second sir. volume is there. I am just showing. Second sir volume है इसमें above EMA. Third one, it has created also sir FVG gap. It is not your breakaway gap, FVG gap. Means buyers are, मार्केट इज वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द बायर्स के कंट्रोल में. नंबर फोर क्राइटेरिया 36 अप्लाई. वाला वॉल्यूम 36. No, again here it has given breakout of above band breakout. So wait for the price to retest and then take the trade. So here I have got first criteria match, second criteria match, third criteria match, fourth criteria match. So इसका मतलब है कि सब क्राइटेरिया अगर मैच होता है, इट मीन्स इफ आई विल टेक दिस ट्रेड हियर, chances of making money increases because it concludes it is under the control of the buyer, और ये अपसाइड का ब्रेक है तो 95 से 99% का चांस है. 95 से 99% का चांस है कि ये ट्रेड आपकी फेवर में आएंगे ना. Close this.
एक सेकंड सर, give me one second. How to trade any timing candle? So first of all, suppose I have got a timing candle. So let me teach the rule. Number one, how to trade any intraday or swing or any timing candle. Number one, mark the high and mark the low after formation of the timing candle. For intraday index, break out on sir, ठीक है, 3 मिनट पर देखेंगे, 3 मिनट्स कैंडल क्लोज, ब्रेकआउट मीन्स कैंडल क्लोज होना चाहिए. एंड फॉर स्टॉक्स एंड एनी अदर, ब्रेकआउट मस्ट बी on 5 minutes. Now, you can take a screenshot of this also. Otherwise, I will share. Don't worry. No. ब्रेकआउट कैंडल मस्ट बी सर 3 to end maximum. मतलब अगर ये मेरे लिए टाइमिंग कैंडल है तो जो यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए वो आफ्टर दिस टाइमिंग कैंडल, जैसे मैंने एक मतलब कि ना टाइमिंग कैंडल निकाला 10-10, तो फ्रॉम दिस कैंडल मैक्सिमम मतलब 6 कैंडल तक इसका ब्रेकआउट होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम. लेकिन अगर 3 से 4 होता है तो इट्स मोमेंटम मस्ट बी वेरी वेरी गुड. बट मैक्सिमम 6. आफ्टर दैट इफ इट ब्रेक्स आई विल अवॉइड द ट्रेड. ना, conservative trader wait for the retest that level and then take the trade. Aggressive trader if you, ये वाली हम लोग सर बाद में आते हैं, ठीक है, retest. स्मॉल टीसीडी कैंडल, अच्छा, स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो टाइमिंग कैंडल का हाई और लो होता है ना. सो सपोज मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं, सपोज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं मतलब कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सपोज मैंने एक यहां पर लिया, ठीक है, टाइमिंग कैंडल, दिस वन. नाउ सो इफ इट इज माई टाइमिंग कैंडल, सपोज मैंने बोला, ठीक है, कोई ये नहीं पूछेंगे सर आपने क्यों लिया, मैं जस्ट एग्जाम्पल को अच्छे से दिखाने के लिए लिया. इसके बाद कहाँ सक्सेस होगा कहाँ फेल होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल आई हैव नो चार्ट फर्दर. Now, here after the formation of this candle, what I have done here, I have simply marked the high and marked the low. Now, wait for the price to break. Now, sorry. One minute, give me time. After the formation of this candle, what does it indicate? ये वाली कैंडल बन गया. अब जब आगे की कैंडल बनेगा, ब्रेक होगा, तब मतलब जा करके, तो तब तक हमें समय मिलता है पूरा ना. What does it indicate? First of all, I have marked the high. I have marked the high and marked the low. Means if any candle breaks upside,
मतलब हमें बाई साइड के लिए जाना है 8328 के ऊपर में, और हमें सेल साइड के लिए जाना है 8302 के नीचे ना। सो बाई अबव 8328 एंड सेल बिलो 8302। क्लियर? क्लियर सर। हेलो? यस सर, क्लियर। ओके। जी क्लियर है। नेक्स्ट, मतलब हमें अप साइड के लिए जाना। इफ यू हैव टू टेक अप साइड ट्रेड, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस नंबर वन। ठीक है, नीचे वाला स्टॉप लॉस। एंड रिस्क रिवॉर्ड सबसे पहले हम लोग 1:2 ही लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला मैंने लगा लिया कि अगर इसके ऊपर में कैंडल ब्रेक करता है तो इट विल बी माई स्टॉप लॉस एंड इट इज माई टारगेट। एंड इफ एनी कैंडल क्लोजेस बिलो ऑफ दिस, आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता। दैट्स वाई आई हैव मार्क्ड ऑल्सो हियर शॉर्ट ट्रेड, कि अगर ये शॉर्ट के लिए होता है तो हम लोग नीचे साइड की प्लान करेंगे। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड पहले हम लोग 1:2 की रखते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग मतलब देखेंगे ट्रेलिंग वगैरह। नो, मैंने हाई लो मार्क कर लिया। नो, हियर इट हैज गिवन ऑफ साइड ब्रेकआउट। क्लियर? ये सुनो। यस। नो, तो जब तक ये वाली कैंडल नहीं बनेगी 5 मिनट की, तब तक हम लोग एनालिसिस, क्योंकि हमें तो ट्रेड लेना है रीटेस्ट पर, हम लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर है, तो वेट कर सकते हैं ना। तो प्राइस को आने से पहले इट हैज फॉर्म्ड ओपन इक्वल्स टू लो। सेकेंड वन, वॉल्यूम इज ऑल्सो देयर एंड volume bar closed above 36 moving average. It indicates buying volume. Third one, is there any एबीजी गैप? अभी तक तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। एबीजी या बीएजी अभी तक नहीं है, ये वाली कैंडल अभी तक नहीं बना है, मान लेते हैं ना। फोर्थ वन, आई हैव अप्लाइड एनी इंडिकेटर बोलिंगर बैंड। नाइस। इट हैज it has given breakout of the middle band and also it has touched or sir given closing nearby upper band. Okay, so we can say कि फर्स्ट क्राइटेरिया मैच ओपन इक्वल्स टू लो, वॉल्यूम है। अभी तक मेरे पास में एबीजी या बीएजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोलिंगर बैंड का जब अपर बैंड को इसने क्लोज किया है तो हम लोग मान सकते हैं कि ये अपसाइड की मोमेंटम है इसमें ना। थोड़ी स्लो कर देते ना। सो आफ्टर द फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करेंगे, और और आपको यहाँ पर थोड़ी सी मतलब कि ना कभी कभी बफर भी लगाना होता है, लेकिन वो बात की बात है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल, जब तक प्राइस रीटेस्ट नहीं आता, ये वाला कैंडल बना, एंड व्हेन दिस कैंडल हैज फॉर्म्ड, इट हैज अगेन कॉन्फर्म दैट ओपन इक्वल्स टू लो। ओके, एंड सेकेंड वन, it has created AVG gap between BAG gap, break away gap between this and this candle. इसने यहाँ पर ब्रेक अवे गैप बना दिया क्योंकि इसकी हाई के ऊपर में इट हैज क्लोज दिस कैंडल। सो मैक्सिमम टाइम व्हेन देयर इज, तो आई हैव गॉट ऑल द कॉन्फर्मेशन। ओपन इक्वल्स टू लो, हियर इट इज ऑल्सो ओपन इक्वल्स टू लो। यहाँ पर मेरे लिए वॉल्यूम भी है ब्रेकआउट पर, सेकेंड वन। थर्ड वन क्या है कि बीएजी गैप भी है, एंड फोर्थ वन क्या है कि ये इंडिकेटर से भी कॉन्फर्मेशन हो रहा है। सो आई विल प्लान द ट्रेड टू कम एट द रिटेस्ट लेवल 8328 एंड देन वी विल टेक द ट्रेड। यू कैन बाई कैश, यू कैन बाई फ्यूचर, यू कैन बाई ऑप्शन, और you can buy call, you can sell put also there, and then wait for the target. Here it has hit my target. Okay, so
after the formation of this candle, timing candle, everything become confirms that कि हमें बाई करना है 8328 के ऊपर में. स्टॉप लॉस इज माई 8302 एंड नाउ टारगेट इज, फर्स्ट टारगेट इज 8380. इट इज माई बाई साइड ट्रेड. डाउन साइड ट्रेड क्या होगा? सेल बिलो 8302, stop loss is 8328 and your first target is 8247. So you have got, after the formation of this candle timing, you have got entry point, stop loss, first target अपसाइड का, और हमें डाउन साइड के भी मिल जाता है कि एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट. नाउ इट इज क्लियर सर. सर ये टाइम फ्रेम कभी भी 5 मिनट्स रहना सर? In नहीं case of कोई भी टाइम फ्रेम का, ये सर उसका मतलब कि मैं 5 मिनट पर कर रहा हूँ, लेकिन ये उसका मेथड है. ओके सर. ठीक. हम्म. सर ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर 6 कैंडल्स हो जाते हैं फिर रिटेस्ट होता है, उस टाइम पे तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे ना? उस टाइम पर एक सेकेंड, ओ एक सेकेंड सर. नो, हाँ अगर ये सर यहाँ पर आकर के रिटेस्ट नहीं करता है तो हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे नॉर्मली, क्योंकि कुछ ट्रेड मिस होती है तो हम लोग सर होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हम लोग टाइमिंग कैंडल्स को निकालते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिप्ले को ऑफ कर देता हूँ. सपोज इन केस ऑफ निफ्टी, इन केस ऑफ निफ्टी यू कैन यूज एनी मेथड. सपोज सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, गंजिला से निकालते हैं. ना, तो टू फाइंड this date time, I have taught we need previous day low, and when it has made the low 1515. डेट कुछ भी रहे, मैंने बोला है कि डेट से इंपैक्ट नहीं होता. 1515 ना, एंड सेशन मस्ट बी टर्न ऑन 9:50. सो यहाँ पर 5 तारीख है तो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम क्या आ रही है? 9:20 एंड देन 10:40. So I have got the first time there 9:20 and then I have got the time 10:40. Okay, nice. तो 10:40 वाला टाइम को हम लोग अवॉइड करते हैं 10:30 बजे के बाद. ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल सिंपली यू कम, आपके पास में और कोई कैंडल नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और कोई कैंडल अभी तक बना नहीं है, मैं जस्ट इस कैंडल को ही. तो ये वाली कैंडल बनने के बाद में what is your work? You have marked the high and marked the low. Now your everything becomes clear. अब सर स्टॉप लॉस बड़ा है तो उसको छोटा करना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में. Now here I have simply marked the high and marked the low. I have to go for the upside above 23789 and I have to go for the downside below 23719. मतलब हमें ऊपर के लिए, मतलब यहाँ पर हमें जो बनानी है पोजीशन वो इसके ऊपर में बनानी है. एंड माई स्टॉप लॉस इज दिस एंड मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2. एंड देन if it breaks downside
स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं आपको वो वाली मेथड भी बताऊंगा कैसे उसको हम लोग छोटा करते स्टॉप लॉस। सो एवरीथिंग बिकम्स कॉन्फर्म कि बाई अबव दिस stop loss is this and your first target is this, and sell side sell below this stop loss is this, target is this, first target तो second third वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे निकालना है। तो यहां तक सारी चीजें मुझे टाइमिंग कैंडल बनने के बाद आई हैव गॉट ऑल द कॉन्फर्मेशन, मतलब ऑल द एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. सही Yes. सर। यस। ना। सर हाँ ये जो सेल जो बोल रहे हैं सर, उसमें पीई लेना है। हाँ, सेल में आपको पुट बाई करना है या कॉल को सेल करना है, या आप चाहे तो फ्यूचर को भी सेल कर सकते हो। सेल पुट को मतलब बाई पीई कर बाई सकते हैं ना कर, सर? हाँ 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 हाँ, पीई को बाई कर सकते हैं या कॉल को सेल भी कर सकते हैं। आप ठीक है। चाहें तो पीई को बाई करें या कॉल को सेल करें, कॉल सेल पुट बाई, या आप चाहें तो निफ्टी की फ्यूचर को भी सेल कर सकते हैं। उस टाइम पर जो भी सर प्राइस रहेगा 5 पॉइंट की बफर लगा ले। जैसे सपोज कि 2 मतलब कि ना 50 है, तो आप क्या करें 2 मतलब कि ना 45 पर लगा ले, 5 पॉइंट कम में बाई करें, ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि निफ्टी 4-5 पॉइंट ऐसे ब्लिंक करता है और बैंक निफ्टी 10 पॉइंट करता ही रहता है ना। आई हैव गॉट ऑल द डेटा ना, वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक सेकेंड, आराम से बनने दे। ना, हियर it has given this candle breakout। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6, चलो मान लेते हैं कि 6 7 कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। एज पर रूल आई विल नॉट इनिशिएट ट्रेड, इट विल बी बेटर, बट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं तो मैं आपको ये दी। सो आफ्टर दिस ब्रेकआउट कैंडल यू हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट। तो जब तक प्राइस नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल पर रीटेस्ट नहीं करे, या नेक्स्ट मतलब कि ना ठीक है 10 मिनट या मतलब 15 मिनट्स पर, तब तक हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे। ओपन इक्वल्स टू लो, नाइस। इज देयर एनी सर वॉल्यूम आया है, इज देयर एनी नो, वॉल्यूम? नो। बट वॉल्यूम कैन आई नहीं है। से वॉल्यूम नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 कैन आई से कि वॉल्यूम 6 कैंडल पहले ही आया है। वॉल्यूम का कलर कुछ भी हो, रेड ग्रीन कुछ भी हो, उससे कुछ नहीं, कैंडल का जो भी आपका कलर होता है वही वाला वॉल्यूम बार शो करता है ना। सो कि वॉल्यूम जो है वो पहले ही आ चुका है, ठीक है, बिग बिग वॉल्यूम ना। तो what I have mentioned, I will share this PDF within 6 कैंडल बिफोर ब्रेकआउट। वॉल्यूम अगर आता है तो इट इज ऑल्सो कंसिडर, कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम पहले आता है ब्रेकआउट बाद में होता है, ठीक है, पहले मतलब अब। तो हियर इट हैज गिवन मी वॉल्यूम, नाइस। नंबर 1 कॉन्फर्मेशन, नंबर 2 कॉन्फर्मेशन, नंबर 3 कॉन्फर्मेशन। इज देयर एनी एवीजी गैप? तो अभी तक नहीं है, या बीएजी नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे जब तक प्राइस रिटेस्ट नहीं करे। फोर्थ वन, आई हैव टेकन कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का जो मिडिल बैंड है वो भी बहुत मतलब दूर है, बोलेंगे ठीक है, ड्यूटी बोलिंग दैट, ओके। नाउ सो आई हैव गॉट these two criteria match। now here price has done the retest and touched the level, I have made the buying entry here, and then I will wait either for the target or for a stop loss, I will wait। so whether I have not got there समथिंग, मतलब काफी लेट आज तो मतलब मूवमेंट नहीं था। सो इन केस ऑफ अ इंडेक्स यू कैन ऑल्सो प्लान, बिकॉज यू नीड फास्ट exit, so you can also plan 1:2
1.5 स्टॉक में हम लोगों का मतलब सही रहता है 1:2। सो हियर इट हैज हिट योर टारगेट। ओके, नाइस। इसके बाद हम लोग आगे जा करके ट्रेल करेंगे। ना, suppose you have calculated the time for this date. So you have taken previous day low. What is the low? 24529 on this 24529 ये वाली है 40। Now, what is the time? 14:15. So here I have placed the 5th March, तो आप देख ले 6th March का। I have got 940 is my first time. 940 is my first time. This is. So after the formation of this candle, simply I have marked the high and marked the low. Now, here it has given breakdown. So व्हाट डज इट इंडिकेट कि क्या मैं यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन होकर के रिटेस्ट किया तो क्या ट्रेड लेंगे, तो क्या मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी ना। हियर इट हैज गिवन ब्रेकडाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली ब्रेकडाउन कैंडल बहुत छोटा है, तो यू कैन इफ योर ब्रेकआउट कैंडल इज वेरी स्मॉल, मतलब लाइक योर टाइनी स्मॉल कैंडल, ब्रेकआउट का कैंडल जो अभी मैंने दिखाया है या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, ठीक है, सॉलिड बॉडी कैंडल, देन इट विल बी परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैंडल इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब अभी तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। अगर ये छोटा मैं इसको नॉर्मल साइज में रखूं फिट करके तो ये बहुत छोटा कैंडल है, इसमें बॉडी नहीं, स्मॉल साइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ you just note down in your diary, if your breakout candle is very small or so tiny candle, avoid this, wait for the next breakout candle. Note down. Now next, so I will avoid this, so I will wait for the perfect candle to break. Here it is my perfect candle, and again here it is open equals to high, नॉट लो, ओपन इक्वल्स टू हाई, क्योंकि इसने डाउन साइड ब्रेक किया, बियरिश ब्रेकआउट, ओपन इक्वल्स टू हाई। सेकेंड वन, वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिव, ओके, नो प्रॉब्लम, one criteria match. Second criteria is what? I will wait for the retest to take the trade. So after this breakout, wait for the retest. So जब तक हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे तब तक इसने एक एफवीजी भी क्रिएट कर दिया है। इट हैज क्रिएटेड बीएजी, सॉरी, आई थिंक सो, नो नो नो, एफवीजी। Now here it has created some BH gap, oh sorry, ये BH gap इसके ऊपर में, which also confirms that कि there is some selling pressure there. First open equals to high, second मेरे लिए वॉल्यूम नहीं है, थर्ड वन क्राइटेरिया ऑल्सो मैच, इट हैज क्रिएटेड BAG gap, oh sorry, FBG gap, and fourth, apply your sir Bollinger Band, and this has given breakdown of the middle band up वाली, ये मतलब इसके नीचे है, and sir before retest it has also given breakdown of the outer lower band, lower lower band, which also confirms that it is completely under the control of the sellers. Now Shut up. wait for the price to retest, जब यहाँ पर आता है तब हम लोग एंट्री बनाएंगे।
मतलब हमारी 3 क्राइटेरिया कॉन्फर्म हो गई आउट ऑफ 4 और 5। सो वी कैन से मोटा मोटा 80% ट्रेड में पैसे बनने की चांसेस है, बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेलर। सो आई विल गो एंड बाई पुट हियर, और हम लोग चाहें तो कॉल को सेल सेल भी कर कर सकते। सकते हैं, ठीक है, कॉल को सेल कर सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर। इट इज माई स्टॉप लॉस एंड माई मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5, क्योंकि इंडेक्स है और अभी मतलब मार्केट का मूवमेंट थोड़ा अजीब रहता है वो, ठीक है। हियर इट हैज ट्रिगर माई फर्स्ट टारगेट। इट हैज टेकन टाइम, एनफ टाइम इट हैज टेकन, बट ओके, स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी है। एंड देन इट हैज ट्रिगर 1:2, 3, 4, 5, all it has trigger. No. So, how to make entry a stop loss target define, it is clear? सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर अगर हमारा एक ट्रेड रनिंग है कोई एक टाइमिंग कैंडल पे, और हमारा एक नेक्स्ट टाइमिंग कैंडल आता है जिस समय हमारा ट्रेड ऑलरेडी रनिंग है, अगर बाय चांस सेकंड टाइमिंग कैंडल दूसरे साइड पे क्लोज करता है, अ, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन रिवर्स करेंगे? नहीं 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 नहीं, जैसे सपोज कि आपका एक सर ठीक है टाइमिंग कैंडल है, और आपका सेकेंड वाली टाइमिंग कैंडल आ गया है 11:40। 11:40 मैंने मान लिया ये वाली, ठीक है, टाइमिंग कैंडल आ गई है। अब इसका भी आप अगर हाई लो को मार्क कर रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं अपोजिट साइड, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं नेक्स्ट टाइमिंग जब मेरी एक ट्रेड एंट्री में है, तो आइदर इट विल हिट माय स्टॉप लॉस और माय टारगेट, मैं तब तक वेट करूंगा ना। तो नेक्स्ट पे क्या होता है, तो फिर नेक्स्ट का इम्पैक्ट हम लोग नेक्स्ट पर देखेंगे। ट्रेड कंटिन्यू है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल की पर हम लोग फोकस ही नहीं करेंगे कि क्या है नहीं है, ओके सर। और एसएल क्योंकि सर हेलो क्लोज पे लेंगे? हाँ। सर, मेरा भी क्वेश्चन था एक। हाँ। सर, जैसे मार्केट बंद हुआ था फ्राइडे को, हम्म। तो सर आपने बोला था जैसे कि मतलब जिस टाइम पे लो लगा है उसको लेना है, टाइम पर्टिकुलर टाइम को। तो सर गोल्ड हम्म। के लिए मैंने पर्टिकुलर वो टाइम को लिया। तो सर ये आज के लिए ना टाइम निकला नहीं, मतलब एंगल पे नहीं आया, डिग्री एंगल पे, सॉफ्टवेयर पे। अच्छा, जी सर। ठीक है ना, मतलब निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है। नाउ जी सर। कम कम हियर एंड सेटिंग्स अप्लाई द सेशन ब्रेक। तो यहां से यहां तक प्रीवियस डे का सेशन रहा है, और आज का सेशन यहाँ से, ओ ये तो सॉरी, ये तो बीटीसी। तो सर सेशन सेशन कैसे आते हैं सर? सेशन यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करें, मिडिल पर रखकर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाए, इवेंट्स में जाए, एंड देन सेशन सेशन ब्रेक। ब्रेक। ओके, ठीक। नाउ सो here it has formed the low. I think this is the lowest point. Yes, this is the lowest point, 1725। किस वाली डेट का है ये? 6 मार्च का है, 6 मार्च 1725। now so you have to find the trade ट्वेंटी for फोर the 8th मार्च, ठीक है। 24 आवर्स नेक्स्ट डे कर का हम लोग लीजिए। लें, हाँ सॉरी, 24 आवर्स। नाउ सर आई हैव नाइन टू मार्च फाइंड। सर जी 9 मार्च लेना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, 9th मार्च लेने के लिए फिर यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा सर, अच्छा। अननेसेसरी हॉलीडे, ठीक है। अच्छा सर, हॉलीडे एट ऐड मार्च कर, ले 8 मार्च ले सकते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर आप हॉलीडे को ऐड करेंगे तब आपको वहां पर 9th मार्च मिलेगा। तो मैंने बोला कि अननेसेसरी मेहनत करने का क्या जरूरत है। अब जैसे 8 मार्च को ऐड कर दिए, ठीक है, फिर आप मतलब जाकर के 9th मार्च को भी ऐड कर दिए हॉलीडे में, तो आपके लिए 9th मार्च आएगा। मतलब अगर मैं इसको बड़ा करूं, गैंजीला को सेल साइज, नाउ आई हैव मतलब सर जी, 7th। मतलब जैसे हॉलीडे पड़ गया, जो 2 दिन का हॉलीडे पड़ गया, तो मुझे 8 तारीख लेना है। जैसे अगले मतलब इसके बाद भी हॉलीडे आएगा, तो उसका अगले दिन में जो टाइम आएगा वही लेना है ना?
और फिर उसके बाद में हाँ जब हाँ मार्केट हाँ सेशन स्टार्ट होगा मंडे को, तो फिर वो मंडे का जो लो लगेगा उस पर्टिकुलर टाइम का और डेट वो डाल दूंगा, तो फिर बराबर सब सेट हो जाएगा, राइट? हाँ हाँ। नेक्स्ट डे आई मतलब थिंक, आपको नेक्स्ट डे लेना है? नहीं नहीं, आई ना, थिंक वो कंफ्यूजन में है सर। इसमें वो उनका कहना है कि एक 7 और सेकेंड 8 एक रख दो। सेकेंड नहीं राइट नहीं सर, नहीं राइट नहीं, सर। आपको आपको क्या है कि डेट से कोई मतलब नहीं है ना। टाइम आपके लिए नहीं बदलता है। मैंने मतलब लास्ट सेशन में ही बोला था कि जो भी टाइम रहे उसका आप जाकर के नेक्स्ट डे का ले ले। बार बार हॉलीडे को ऐड करेंगे, बहुत बड़ा मतलब कि ना डेटा बन जाएगा ये हॉलीडे, वो तो कॉम्प्लिकेटेड करने आप मतलब देखें। 9 मार्च को क्या मतलब कि ना मेरे लिए टाइम है, यहाँ पर मैंने डेटा इनपुट करा है 6 का, और 9 मार्च का मेरे पास में डेट है ये, सॉरी ठीक है, टाइम है ये 7:25, 12:25, 17:25 एंड 23:25। लेकिन मैं अगर हॉलीडे को डिलीट भी कर दूं, हॉलीडे को डिलीट कर दिया मैंने, क्योंकि ये अननेसेसरी हो मतलब कि ना मेहनत करना होता है, तो भी मेरे लिए डेट चेंज होता है लेकिन टाइम नहीं चेंज होता है मेरे लिए। यहाँ पर क्या है कि 6 के बाद में नेक्स्ट डेट मेरे लिए 7 मार्च हो गया, लेकिन टाइम मेरे लिए सेम ही है ना। तो हम लोग ऑलवेज नेक्स्ट डे लेंगे तो हमें अननेसेसरी मेहनत से हम लोग बचेंगे टाइम, तो राइट हमें। सर जी, सर ये क्लियर है, जो आपने बताया ना ये वाला, ये क्लियर है। हम्म जैसे अब आज मंडे है तो मुझे कल के लिए टाइम निकालना है, तो जैसे मैं आज का लो पुट कर दूंगा ना, जी सर, पर्टिकुलर टाइम का, तो यस मतलब यस अब यस। उसके बाद 10 तारीख आ जाएगा ना प्रॉपर। मैं बस यही पूछ रहा था। नहीं नहीं, हाँ आज का आप अगर ऐड करेंगे तो सर कल का आपको मिल जाएगा 10 तारीख। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि डेट बैठाने की जरूरत नहीं है ना। जो डेट बैठा रहे, टाइम बैठा दे, और यहाँ पर जो भी डेट है आप उसका नेक्स्ट डे ले ले, मतलब बात खत्म। मैं सर अभी दिखा, तो फर्स्ट जी ऑफ सर। ऑल आई हैव गॉट 7:25 इज दैट टाइम। ये देखिए 7:25 ना। So after the formation of this candle, I have simply marked the high and marked the low 7:25। चलिए कोई बात ना। नेक्स्ट कैंडल है ना, तो हम लोग यहाँ पर गोल्ड में बाई साइड के लिए जाएंगे कब? When the price will give ब्रेकआउट अबव सर 5077 एंड प्राइस विल डू मतलब परफेक्ट रिटेस्ट। सेल साइड के लिए जाएंगे जब ये 5070 के नीचे इसने ब्रेक डाउन करेगा और रिटेस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि ये वाली मैंने सर मार्केट, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल हैज गिवन डाउन साइड ब्रेक डाउन, ओके। तो जब तक प्राइस रिटेस्ट नहीं करे, इट इज ओपन इक्वल्स टू लो, एंड नाउ अप्लाई योर वॉल्यूम। नाइस, इसमें क्या वॉल्यूम भी है, ओपन इक्वल्स टू हाई भी है, एंड इज देयर एनी एफबीजी गैप? नो, एफबीजी का कोई भी यहाँ पर गैप नहीं है, ठीक है ना। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? तो इसने यहाँ पर एग्जैक्ट मिडिल बैंड पर उसने मतलब कि प्राइस ने सपोर्ट लिया, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव टेकन ट्रेड हियर 5070, आई हैव फॉलोड द रूल्स, दो क्राइटेरिया मैच हुआ, तो मेरा 50% पैसे बनाने का चांस है। 50% नहीं है, इंडिकेटर से भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, छोड़ो। बट अगेन इफ आई हैव टेकन ए स्मॉल क्वांटिटी एंट्री, इट हैज ट्रिगर माई स्टॉप लॉस हियर, ओके नो प्रॉब्लम। After triggering a stop loss, it has given upside breakout. Now again follow the rule. 70 पिप्स का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगेन इट हैज गिवन अपसाइड ब्रेकआउट, ओपन इक्वल्स टू लो, मतलब छोटा वीक्स रहे और अगर बॉडी बहुत बड़ा रहे तो यू कैन ऑल्सो कंसीडर। तो इट इज माई बिग बॉडी कैंडल नंबर 1, ओपन इक्वल्स टू लो। सेकेंड कॉन्फॉर्मेशन वॉल्यूम से है। थर्ड कॉन्फॉर्मेशन, बिफोर प्राइस कमिंग टू द retest, it has created a FVG gap between this, oh sorry,
BAG gap, break away gap it has, means it is again indicating कि right now buyers are aggressive on this breakout. Buyers are aggressive. तो तीन क्राइटेरिया यहाँ पर मैच हो गया, इंडिकेटर लगा लेते हैं. इट हैज नॉट क्रॉस्ड हियर, ओके, बट इट हैज गिवन अपसाइड. इसने इसका नीचे क्लोज नहीं किया था. इंडिकेटर का कॉन्फर्मेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, या तो ये अपर वाली बैंड को क्रॉस कर दे देन इट इज एग्रेसिव, और यू जस्ट नोट डाउन, हेलो, यस सर. बोलिंगर बैंड में तीन बैंड होता है, मिडिल बैंड, लोअर में. तो या तो अपर बैंड को क्रॉस कर दे देन इट इंडिकेट्स अपसाइड मोमेंटम लाइक दिस, ओके. अदरवाइज if it has sir taken support और ये इसके ऊपर में क्लोज करे, ठीक है, या तो इसको जाकर क्रॉस करे, नहीं तो मिडिल बैंड के ऊपर में क्रॉस करे, देन इट ऑल्सो इंडिकेट्स अपसाइड मोमेंटम. ये वाली थोड़ी कम होती है, अपर वाली मतलब ज्यादा होती है. ऐसा अगर बनता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, बट इट इज अनदर थिंग. बट स्टिल इफ इट क्लोजेज अबव द ये अबव द मिडिल बैंड, इट ऑल्सो शोज दैट राइट नो, मतलब कि ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं है वो. सर जी ईएमए और बताइए ना सर, ईएमए में सर ये बॉलिंजर बैंड में यूज नहीं करता थोड़ा सा. ईएमए आप मतलब ईएमए सर वो मैं मतलब इस्तेमाल कम करता हूँ, तो वो आप मतलब लगा लें. ईएमए 21 लगा ले, 21 लगा ले ना. तो ईएमए के ऊपर में भी क्लोज है, चलो कोई बात नहीं, कोई भी ट्रेंडी इंडिकेटर लगा ले, कोई सा दिक्कत नहीं है. एंड it has given to all the criteria match, open equals to low, volume, BAG gap, and also, so if the price will come and take the retest here 5077, 99% chance to make money in this trade. क्यों? क्योंकि all the criteria matches which shows upside breakout means it is under the control of the buyers, so take the long entry there. And then first take sir 1:2 and then trail 1:3 4 5, आपको जो अच्छा लगे वो मैं आपको आपको सर मैं वो भी मेथड बताऊंगा ट्रेलिंग का. तो ना, what you have lost here 70 pips, you have also recovered here at the rate of 1:2 risk reward. That's why I always use minimum 1:2 और सर 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड. कि अगर एक बार एसएल, पहला बार तो जाता बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर चला जाए तो सेकेंड टाइम आई कैन ऑल्सो रिकवर द ट्रेड. सर हमें एसएल राइट क्लोजिंग सर. बेसिस पे लेनी है. क्लोजिंग बेसिस पर ले और इसके थोड़ी सी नीचे लेनी है, ठीक है, गैन थ्योरी में, वो मैं सर आगे सर में से जैसे बात आपने कर. सर हम्म. जैसे आपने पिप्स का बताया, 70 पिप्स का स्टॉप लॉस. सर मतलब इतने पास में 70 पिप्स का स्टॉप लॉस कैसे हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आया. ये मतलब कि कितना है पॉइंट, पॉइंट्स है ना 70 से 70 है ना. 77. 77 से आपका तो 70 कितना पॉइंट हो गया हो, 7 पॉइंट हुआ ना. 7 7 पॉइंट. मल्टीप्लाई विथ 10. जब भी पॉइंट को पिप्स में आपको सर ये मेन बात है करना होता है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई. तो 70 वहां पे क्लियर दिख रहा है. नहीं 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 नहीं, दिख नहीं रहा है. आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, यहाँ का जी सर. क्या है प्राइस 5070, और आपने यस. यहाँ पर एंट्री बनाया 5077. तो सर कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब आप अगर यहाँ से अपनी एंट्री से लेकर के 6 ये पॉइंट का करेंगे सर. तो 7 पॉइंट है. तो 7 पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इट विल बी द पिप्स, मतलब 71 पॉइंट. तो 71 पिप्स, पॉइंट को पिप्स में कन्वर्ट करने के लिए इन केस ऑफ फॉरेक्स गोल्ड मल्टीप्लाई विद द 10, इट विल अच्छा बी मल्टीप्लाई 70 करना है, पिप्स. वहां पर जो 10 दिख रहा है सर वहां पर उसी से मल्टीप्लाई करना है ना. मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये
कोई भी सर पॉइंट्स जैसे सर जैसे माइक्रो 7 लॉट है, पॉइंट। 0.01 का लॉट है, 0.01 का माइक्रो लॉट। हम्म। फिर सर 0.01 में $7 का रिस्क होगा। राइट, हाँ मैं वही बोल सेवन रहा था। डॉलर का रिस्क होगा। वो मैं आप लोगों को मतलब के कैसे पिप्स हम लोग निकालते वो मैं सर बाद में बताता हूँ। पहले जो टाइमिंग कैंडल का ट्रेड है आप उसको देके मैं वो थोड़ी देर में ये मैं सर बता करके मैं वो मतलब कि पिप्स कैलकुलेशन। नेक्स्ट टाइम इज व्हाट नाउ। नेक्स्ट टाइम व्हाट आई हैव गॉट लास्ट 1205 1205। So after the formation of this candle, I have marked the high and marker. It has given downside breakout. Open Open equals is to equal low. to high. हम्म? Open is equal to high, sir. मोटा मोटा क्योंकि यहाँ पर जो मेरी कैंडल है बहुत बड़ी है तो हम लोग विक्स को मोटा मोटा मान सकते हैं कि ओपन इक्वल्स टू हाई। नंबर Yes, टू sir. इसमें क्या है कि वॉल्यूम भी है। Volume is high. ओके। थर्ड कॉन्फॉर्मेशन इट हैज Sir, इस क्रिएटेड 21 होंगे। नो नो इट हैज क्रिएटेड ऑल्सो एफवीजी गैप को आप ऑलवेज इंक्लूड करें। मैं ये आपको बहुत अच्छी पैसे देगी वो क्योंकि वो एग्रेशन को शो करता है। इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड बीएजी FPJ गैप। gap. इसके नीचे क्लोज है तो सर ब्रेक अवे गैप। तो मैंने अभी आपको बोला कि मतलब कि एक सेकंड एक सेकंड ना आई हैव टोल्ड कि जब भी बीएजी होता है तो आपको सर रीटेस्ट के मौके कम मिलते हैं। ओके नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं ना। लेट मी। तो यहाँ पर क्या है कि बीएजी गैप है। ओके। सो यहाँ पर अगर ये प्राइस तो आई हैव गॉट फर्स्ट सर कॉन्फर्मेशन ओपन इक्वल्स टू हाई। इसके Yes, sir. बाद बीएजी गैप। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि मेरे लिए वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन भी है। एंड देन आई हैव अप्लाइड ईएमए और सर Bollinger Band or इसके EM. भी मतलब नीचे है। और अगर आप बोलिंगर लगा ले तो भी ये मतलब मिडिल बैंड के तो मोटा मोटा ये शो कर रहा है कि नाउ आई एम डाउन। Top. So all the Yes. criteria matches. And after that, if you will get this trade here, 5114, तो इसमें पैसे बनाने के चांसेस आपकी 95% से ज्यादा है। मतलब ये वाली जैसे नहीं आया है तो ट्रेड कभी कभी मिस भी होता है। तो हियर 120 पिप्स का यहाँ पर रिस्क है उसको हम लोग मतलब मिनिमाइज करेंगे छोटा। एंड देन आई हैव गॉट हियर समथिंग 1:2 और समथिंग दैट यस I have got here 230 pips reward. Now it is clear how to trade यस सर। timing candle. जी Yes, सर। sir. यस सर यस सर। टाइमिंग कैंडल निकालना सिखा दिया ट्रेड। अभी कुछ मतलब कि ना चीजें आपके लिए बची हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस छोटा कैसे करेंगे ट्रेल कैसे करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को मदर कैंडल की टाइमिंग में भी मतलब पढ़ाऊंगा कि वो मतलब सर क्या जैसे होती मैं है। ये बोल रहा था, सर ये हम्म। 5 मिनट में मतलब फेक सिग्नल कुछ ज्यादा मिल रहे हैं, अगर हम इसे 15 मिनट शिफ्ट कर दें तो? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके लिए पॉइंट्स बड़ा होगा स्टॉप लॉस बड़ा होगा टारगेट भी बड़ी होगी। राइट। हम्म। सर एक क्वेश्चन था। आज के आपने एबीबी का जो ट्रेड दिया था उसमें आपने था 40 पे दिया था कि भी 40 वॉच करना है। इट वेंट अप टू 59। सो हाँ अगर देखा जाए तो 40 के अबव जाने वाला ट्रेड हो गया तो मतलब इसमें आप कैसे अपना व्यू मेंटेन रखेंगे कि ये बिलो जाने का जो था। नहीं मेरा ट्रेड जैसे मैंने ट्रेड दिया या आपने ट्रेड लिया तो जी। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेड के ऊपर में नहीं जा सकता ये जा ही सकता ऊपर नीचे के ही पैसे बनते हैं सर। नहीं नहीं मेरा मार्केट क्वेरी में सर जो आप। पैसे बनते हैं तो जैसे सपोज कि इसने मतलब कि ना सीधा नीचे आ गया लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आए तो जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता तब तक आप उस ट्रेड में रहे ना। अमर से मेरा क्वेरी अमर एबीबी के लिए था। जैसे आज आपने एबीबी का एक ट्रेड दिया था हाँ ग्रुप में। हाँ 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 मैं सर एबीबी खोल लेता हूँ एबीबी खोल लेता हूँ क्या दिक्कत है। दिस विल हेल्प अस एक्चुअली।
तो आपने पॉइंट दिए थे 5940। हाँ मैंने दिया था वो हाँ हाँ सेल करने के लिए, वो आई थिंक सो हियर हाँ 5940, जी यहाँ पर मैंने दिया था। ठीक है। जी जी। हम्म। तो फर्स्ट इसने 5940 पर इसने मतलब क्या किया कि ठीक है, मतलब ये वाली लेवल को आकर के इसने सर टच किया। मेरा स्टॉप लॉस कहीं पर था 5970, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ था। मतलब राइट राइट 5970 के ऊपर में अगर क्लोज हो जाए तो हम लोग स्टॉप लॉस, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस एज अ पॉइंट इट हैज ट्रिगर। बट स्टॉप लॉस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एंट्री होता है ना, जी। जैसे आपके लिए टारगेट 1 टारगेट 2, वैसे स्टॉप लॉस जब कैंडल क्लोज कर जाए तब हम लोग दे देते हैं। तो अंडरस्टूड। कैंडल क्लोज नहीं हुआ था। नो। सर इसमें थोड़ा बफर दे सकते हैं ना, बफर देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये तो पास्ट का अभी सर मेन बात है कि डेटा है ना, देखने में बहुत तो अच्छा लगता है, इजीली सुंदर इजी लगता है लगता है पास्ट का हाँ। डेटा। लाइव मार्केट जी। में सर मेन बात है कि हवा निकलना शुरू हो जाता है। बहुत जोर से इसीलिए हवा निकलती है। अपने लोग, हाँ इसीलिए अपने लोग जो भी मेरी स्टॉप लॉस है, मेरा रूल्स है, मैं उसके साथ में ही चिपका रहूंगा। स्टॉप लॉस हो या सर मतलब कि ना, जो भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अभी ये पास्ट की डेटा है, तो इसकी एनालिसिस बहुत तरह से लोग कर सकते हैं कि बफर है नहीं है। लेकिन जब लाइव मार्केट में यहाँ पर एंट्री के बाद जब ये प्राइस बढ़ता है तो सर हार्ट हवा बीट भी लगते हैं। बढ़ तेज जाता हो है, जाता है तेज हो जाता है। तो मैं सर पास्ट की डेटा पर सर एकदम बिलीव नहीं करता, पोस्टमार्टम ऑफ द डेड बॉडी। जो बोलेंगे ट्रेड साफ सुथरा बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस सपोज इसके ऊपर में कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ट्रेड में रहेंगे। आफ्टर दैट आप लोग एकदम से मतलब कि ना नए हैं, तो मैं भी कुछ कुछ मतलब कि ना प्राइस एक्शन की चीजें मैंने आप लोगों को बताई नहीं है ना, वो आने वाली सेशन में थी ना। इट हैज टस्ट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस की एरिया से क्या हुआ है, इट हैज टेकन स रिजेक्शन। यस। और फिर इसके नीचे आ गया है तो आराम से बने। तो यू कैन डू हियर टू थिंग्स। क्या क्या? अभी आप बोले। हेलो। यस। हेलो सर, फ्यूचर मुझे सेल। एक हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे अपने सेशन के अंदर मतलब लाइव मार्केट में भी कुछ सेशन होने वाले हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद, ओके सर। आफ्टर थैंक 1 मंथ। तो सर मेरा अभी भी एक जैसे क्वेश्चन था। आप मतलब स्टॉप लॉस को दे सकते हैं, नंबर 1। या नंबर 2, ये तो जस्ट एक मतलब कि ना वीक्स है तो कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ट्रेड में बने रहे। अदरवाइज स्टॉप लॉस देने के बाद अगेन ये फिर से इसके नीचे क्लोज करे, अगेन डू योर एनालिसिस, ओपन इक्वल्स टू हाई, ठीक है, वॉल्यूम ये ईएमए के भी नीचे है, एंड इसने यहाँ पर एफवीजी गैप भी क्रिएट कर दिया। जब ये प्राइस आकर के रिटेस्ट किया भी, अगेन यू कैन टेक एंट्री देयर, शॉर्ट एंट्री देयर, सेकेंड टाइम। First time it has trigger a stop loss, no problem. Second time you can again plan for your entry. And here it has given you 1:2 risk reward। बहुत देर बाद मिला क्योंकि मार्केट में आज कोई मूवमेंट ही नहीं था, इतनी बड़ी गैप्स के बाद में फिर वो अपसाइड निकला। तो यू कैन डू ऑल द थिंग्स हियर। एंड इन केस ऑफ सर एमसीएक्स, आपने गोल्ड में भी दिया था ना ट्रेड आपने? एमसीएक्स, हाँ हाँ हाँ, उसमें तो स्टॉप लॉस चला गया, तो वो भी मैं सर आता हूँ, ठीक है, खोलता हूँ मैं। आज सर काफी दिनों बाद मेरा ये स्टॉप लॉस गया है गोल्ड में। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल सर। ये जो आपने एबीबी और एमसीएक्स में जो पॉइंट दी, ये गैंजिला से कैंडल्स ली, मतलब ये ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई कैसे किए हैं? ये ट्रेड मैंने आइडेंटिफिकेशन किया था आज। देखे आज मतलब इतनी बड़ी जब सर ठीक है गैप अप या फिर मतलब कि ना गैप डाउन हो जाए, तो बहुत मतलब कि ना मुश्किल होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना कि कहाँ पर मार्केट में क्या होगी। राइटली तो सेड। इतनी इतनी बड़ी, हाँ हम लोग कब करते हैं जब मार्केट की मूवमेंट स्मूथ हो। बट इतनी हम्म बड़ी गैप डाउन के बाद में टाइमिंग कैंडल को मैं फाइंड आउट नहीं करता हूँ। तो हम्म। मैंने क्या किया, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, ओके। उस टाइम शायद ये वाली टॉप मतलब नहीं बना था जब मैंने ट्रेड वो मतलब डाला था, ठीक है, 10 बजे तक ये बना था शायद,
या फिर ये बना था, आई डोंट रिमेम्बर। सो आई हैव गिवन द ट्रेड कि ये मतलब मोटा मोटा दस तीस मैंने का दिया था 10, टू। हाँ, हाँ 10 28 पे दिया था 10 पे। सर आपने। तो मेरे पास में 0.382 की भी यहाँ पर लेबल्स थी। और अगर आप इसको पीओबी की इंडिकेटर लगा ले, आप, मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ ना, बाई अबव। तो यहाँ पर मेरी एक मतलब कि ना, यहाँ पर लेबल थी कि अगर ये प्राइस इसके नीचे आता है, ये ये मेरे लिए बाई अबव का एरिया था। बट हम्म इसके अगर नीचे आता है तो इस पर आकर के 0.382 लेबल प्लस दिस लेबल ऑल्सो कॉन्साइड्स। हम्म तो हम्म मैंने इसके अराउंड 255, ये 2548 के अराउंड मैंने ये ट्रेड को दिया था कि इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ये बहुत कम है। तो मैंने उसकी मतलब कि ना बेसिस पर ही दिया था। और ये मैं सालों साल से करता हूँ, तो मैं वो मतलब फटाक से कर लेता हूँ। आपको थोड़ी सी दिक्कत है, मैं ये सालों साल से करता हूँ कि कहाँ से मतलब एग्जैक्ट इसका सर मेन बात है कि बॉटम कहाँ पर बन करके फिर ये रैली करेगा। तो मैं सालों साल से करता हूँ टाइमिंग, और ये तो मेरे वही लिए। डिसीजन मेकिंग नहीं, ये 10-28 पे डिसीजन मेकिंग मुश्किल था, इसलिए क्वेरी था। क्योंकि 10-28 पे यूजुअली ये दिख रहा था कि ये जब सेलर सेलर कंट्रोल में दिख रहे थे इस वीक पे, तो थॉट ऑफ कि ये इसमें बाइंग ट्रेड देना आपके लिए कैसे पॉसिबल हुआ, दैट वाज द बिग क्वेरी। नहीं 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 नहीं, सेलर्स कंट्रोल में थे, आपकी बात सही है। लेकिन जब इतनी बड़ी रैली है, तो जब तक ये 0.5 के नीचे नहीं आता है, मैंने पहले ही कहा था मतलब कि सेमिनार में हम्म भी, तब तक ये हम्म बायर्स के ही कंट्रोल में है, एज ओके पर एलियट ओके, वेव। बट यहां पर क्या है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है। तो जब पार्शियल अंडरस्टूड। प्रॉफिट की बुकिंग है, नंबर वन, और मतलब सेकेंड वन प्रीवियस डे का जब हाई की भी एरिया है, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर ये अपसाइड की रैली शो करेगा। मींस इट इज फॉर्मिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस वन, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई। मतलब बनाएगा वो। तो हायर हाई ये मतलब फिर से बनाएगा वो ना। सर एक दैट्स डाउट है व्हाट। सर। दिस वाज नाइस ट्रेड सर, दिस वाज सर नाइस एक ट्रेड। डाउट है सर। और जो मैंने सर मतलब कि ना मोटा मोटा लेबल दे दिया था, उसके नीचे तो आया ही नहीं, और उसके ऊपर ही रहा सारा दिन वो। तो ये मतलब सारी चीजें आप लोगों को भी करते करते आ जाएगी वो, मतलब मैं तो सालों से करता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। पर सर ये एआई का यूज करके आपका ब्रेन कॉपी करके दे सकते हैं। सर एक डाउट है सर। अब क्या हो गया सर? इसका डाउट। सर सर जनरली कभी कभी ये निफ्टी इंडिसेस में तो बहुत बार गैप अप और गैप डाउन होता है ना, तो वो टाइम में तो टाइम साइकिल वर्किंग करना नहीं 50। नहीं नहीं नहीं, अगर वो 100 पॉइंट्स का होता है, 150 का होता है, देन इट इज ओके, यू कैन टेक। बट टुडे इट हैज गिवन 600 पॉइंट्स ना। नहीं सर, जनरली क्या होता है, ये फर्स्ट कैंडल गैप अप गैप डाउन होने के बाद में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल जो है वो 50 to 60 पॉइंट्स स्विंग होता है, लो टू हाई, ओपन टू लो और लो टू हाई, ये स्विंग होता है। तो हम्म। ऑटोमेटिकली अपने को छोटा गैप डाउन हो भाई, 50 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ तो भी फर्स्ट कैंडल जो है वो स्विंग जो है अपने को 50 to 60 पॉइंट्स मिनिमम निफ्टी में आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अपने को वहां पर 50 पॉइंट्स का गैप डाउन और ये स्विंग जो है 50 पॉइंट्स पकड़ ली है, तो 100 पॉइंट्स का गैप डाउन आ रहा है। तो यहाँ पर अपने को टाइम साइकिल का वेरिएशन हो रहा है, तो उसका चांसेस 50-50। तो क्यों ना हम उस दिन एस्ट्रो का टाइम साइकिल कुछ लेके कुछ अपन वो प्रॉफिटेबल सर, बना। वो हम लोग एस्ट्रो में पढ़ेंगे ना, एस्ट्रो क्रेजी टाइम निकालना वो एस्ट्रो में पढ़ेंगे, ठीक हो। अभी तो ठीक मैंने है। पढ़ाया नहीं है ना, तो अभी मैं उसकी बात करूँ तो अननेसेसरी मतलब कि ना, ठीक है, हाँ मतलब जी। डाउट नहीं होगी। जब मैं पढ़ाऊंगा तो एस्ट्रो टाइम आप आराम से ले लेना, कोई सा इशू नहीं है वो। ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट्स का ले ले, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा से ले ले। प्लस आप मतलब कि नकल जैसे मार्केट में सर, ठीक है, भद्रा है तो मतलब कि ना, ठीक है, भद्रा की सेंटीमेंट कल के लिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट अगर है तो आप उस टाइम पर, ठीक है, आप मतलब एस्ट्रो का भी टाइम आराम से मतलब ले सकते हैं। लेकिन अभी तो मैंने गैंजेला पढ़ा है और मैंने एक्सेल पढ़ा है, तो मैं सर उसकी बात करता हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी। नाउ सर ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर रहे हो, और जैसे हम नेक्स्ट क्लास सिक्स। में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सर, सर नेक्स्ट एक क्लास में। क्वेश्चन है। यस।
सर ये जो आप रोज वो 3 स्टॉक्स देते हैं जिनमें देर आर 8 कॉम्बोज 7 कॉम्बोज, यस यस यस, 6 7, हाँ। व्हाट इज वो दैट कहाँ मीन से एक्चुअली? निकालते हैं वो कॉम्बो? व्हाट डज इट मीन? हाउ टू ट्रेड दैट कॉम्बो? उसकी इंपॉर्टेंस क्या है It सर? will, it will, I will teach na. How ओके। to make a combo, I will teach. How to make a combo after this intraday session. अभी आपकी दो और मतलब कि ना इंट्राडे की सेशन होगी, ठीक है। एक मतलब ओके। आपकी होगी स्टॉक सिलेक्शन, प्राइस लेवल, बाई अबव सेल बिलो। सेकंड वन ओके। मतलब कि ना नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ विल यू मेक stop loss small, target big, how will you trail, and then stock selection, and then sir gain price level, buy above, sell below किसके ऊपर में। After that I will start TCD combo, how to make the ओके। combos। बेसिकली सर ओके आप सर। जो 3 4 शीट शेयर करते हैं ना रोज, कि एक वो मैक्स पेन लेवल और वो सब जो निफ्टी का, हाँ, वो हाउ टू यू नो इंटरप्रेट दो शीट्स, वो एक बार समझने का है। आई थिंक वो I एक have एक महीने given, बाद है। I have already given there। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि आई हैव गिवन जीसीपी लेवल, ओके ना। तो अभी जैसे मैंने मैक्स पेन का मतलब कि मैंने सर सर ये पहले दिया, ठीक है। गोल्ड का। मैक्स पेन प्राइस, तो टुडे मैक्स पेन विल स्टार्ट कितनी इन बार? निफ्टी इफ इट क्लोजेज बिलो। तो आज तो सारी लेवल से निकल गई थी क्योंकि वो मतलब कि अदरवाइज इफ इट क्लोजेज, इफ एनी 15 minutes candle closes the below of this means what। अगर कोई 15 मिनट्स का कैंडल इसके नीचे क्लोज होकर के रिटेस्ट करता है, देन ओके। मैक्सिमम चांसेस यू विल गेट ऑल दिस टारगेट ओके। ओके मैक्स सर। पे। आई आई राइट। मीन टू से व्हाट, आई मीन टू से व्हाट, गिव मी सपोज 2540, okay nice। And if any 15 minutes candle closes below this, or sir maximum 10 minutes, and then the price retest, chances of triggering all the target because it is the maximum pain level where sellers will come। मोर अग्रेसिव सर। नहीं नहीं गॉट नहीं इट नहीं, गॉट इट। सेलर्स अपने आप को पेन फील करेंगे ना, मतलब कि ना जैसे वाई में आता है मैक्स पेन, तो मतलब कि ना तो यहाँ पर चांसेस है कि ये नीचे आ जाए प्राइस, मैक्सिमम चांस। और वो मतलब आता भी है वो अब जा करके देखा। चांसेस ऑफ गेटिंग लोअर लोअर साइड टारगेट्स आर हाई। लोअर साइड टारगेट इज मोर ना। ओके। एंड आई हैव नॉट गिवन टाइम, मतलब मैजिकल टाइम, एस्ट्रो टाइम नहीं दिया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से ही मतलब कि ना ठीक है गिफ्ट निफ्टी से ही कॉन्फर्म हो गया था कि बड़ा सा सर ये करेगा। तो टाइमिंग तो आपको निकालना सिखा दिया, बट मैंने नहीं दिया कि पता नहीं इतना बड़ा गैप्स के बाद में वेदर इट विज फॉलो द रूल और नॉट, आई डोंट नो। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन टुडे। तो सर एक छोटा सा नाउ, क्वारी था। हाँ सर बोलिए प्लीज। सर जैसे टीसीडी टाइम आप निकालते हैं एक्सेल शीट से, उस पे 9 7 AM टाइम लिखा होता है सर। हाँ तो सर अगर हाँ मान हाँ लीजिए सर, हमने, आज निकाला तो लाइक 44 मिनट्स का दिया सर, बहुत साइकिल वन एंड नहीं सर, साइकिल टू। अगर सपोज सर अगर मैं क्रूड ऑयल का मान लीजिए ट्रेड करना, उस पर टाइमिंग निकालना है, तो सर क्रूड ऑयल 9 बजे ओपन होता है, तो सर उसमें टाइम भी चेंज करेंगे हम? हाँ हाँ हाँ, उसमें सर वाइब्रेशन टाइम जो आएगी वो सर ऐड होगा 9 बजे से, मतलब 9 AM, ठीक है सर। सेम मेथड सर है। एक उसकी बार जो, आज का इसकी एक सेकंड, एक सर सेकंड, एक बार उसकी क्रूड जो, ऑयल के चार्ट एक पे सेकंड, दिखाई दो सर। एक सेकंड, अभी जैसे अभी आपको आपको अगर समय निकालना है सर गैन जिला से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं सर, क्रूड ऑयल। टीसीडी एक्सेल शीट से अगर निकालना हो तो। हाँ मैं सर आता हूँ, ठीक है, दोनों ही आता हूँ थैंक मैं। यू सर, थैंक जैसे आपको अगर समय निकालना है Gangila से, so when it has made the low, it has made the low around this time. Okay, now it is the lowest point of 6th March. So I have taken 11 बजे। मैं जस्ट टाइम को चेंज कर देता हूँ और नेक्स्ट कैलकुलेट कर देता हूँ ना। 6th मार्च है तो मेरे लिए 7th मार्च 11 बजे 5 बजे, और तो 7th मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग आज डे, का। दैट इज 9। तो बस सर एक चीज इसमें पॉइंट था कि 12 आवर्स की जगह ये आई थिंक इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम जो अपन ने अभी विजिबिलिटी में आपने टिक नहीं किया है,
अगर अपन वो टिक करें तो। हाँ, 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। अभी तो मतलब कि 23:50 तक होता है क्या? वो पहले सर तो आपके साढ़े पास ग्यारह सेवंथ मार्केट तो ऊपर भी टाइम आ रहे हैं ऑलरेडी, और भी टाइम ऊपर आ रहे हैं आएंगे, फिर। आएंगे आएंगे। हाँ, 23:50 तक वो मतलब कि ना मार्केट होता है। तो 23:50 अगर मैं कर देता हूँ मार्केट क्लोजिंग। नो, सो हियर आई हैव गॉट द 7th March टाइम 10:05। फर्स्ट आई हैव गॉट द 10:05। 10:05। ये तो ठीक है, फ्यूचर की कैंडल उतनी अच्छी नहीं बनी है। नाइस, मतलब कोई दिक्कत। देन 14:45 आई हैव गॉट द टाइम। 14:45। नो, यस सर, यस। this time. Mark the high and low. It has given downside breakdown and sir perfect retest and then it fall. जी यहाँ सर, पर जी। काफी देर बाद हुआ है। And then the time you have got 8:05। 8:05 यहाँ कहीं पर है। नाइस, सुपर समय है। तो ये मेरे लिए समय निकल गया गैंजुलर से, ठीक है, ओके। अब ठीक। एक्सेल से निकालना है, तो हाँ इनपुट जी। में आपको आज का 9 बजे का ओपन का प्राइस डालना पड़ेगा, 9 बजे का, ठीक है। एट सिक्स नंबर नाइन 1, 8697। एंड ठीक। वेयर देयर इज अ वाइब्रेशन टाइम, जो मैंने वहां पर 9:15 किया हुआ है, आप एक जी। अलग से बना ले, एक्सेल को सेव कर ले क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए, एंड चेंज द टाइम टू 9 AM। तो ओके नाइन सर। ए एम में वाइब्रेशन का टाइम प्लस होगा वो। ठीक है सर, ठीक। तो यू विल गेट द नेक्स्ट, मतलब कि ना वाइब्रेशन और प्रेशर टाइप यू कैन डू। बट ऑल्सो सर गैंजिला इज ऑल्सो बेस्ट, यू कैन यूज एनी वन। ठीक गैंजिला है इज सर। ऑल्सो बेस्ट। तो ठीक। आज की सेशन एंड करते हैं सर। वी हाँ जी, विल हाँ। मीट ऑन सर ओके, जी, थैंक यू। थर्सडे। सर थोड़ा निफ्टी का बताइए ना सर, हम लोग निफ्टी का का। क्या निफ्टी का बताएं? व्यू, निफ्टी का व्यू यहाँ से क्या है सर? बुलिश है या फिर बेरिश है? यहाँ से सर बुलिश है ना व्यू। अभी के लिए निफ्टी। बॉटम बन गया, 24,000 पर खड़ा है। अगर 24,228 को ये कल क्रॉस कर देता है, मतलब इफ निफ्टी क्रॉसेस, मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ से मार्केट में शॉर्ट टर्म की बॉटम है, यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा, इसलिए मैंने एबीबी का ट्रेड सभी लोगों को बोला, जो भी पैसे बनते हैं अभी मतलब लेकर के निकलो, या कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलो, आप यहाँ से रिकवर कर जाएगा। तो इफ निफ्टी हैज स्टैंड एग्जैक्ट अराउंड 24,000, एंड इफ इट क्रॉस नेक्स्ट डे 24,228, मतलब मोटा मोटा राइट नाउ इट हैज टर्न्ड बुलिश, और ये 25,000 अगेन वो मतलब क्रॉस करेगा वो। तो इट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, कल को मार्केट को क्रॉस करने दे। राइट सर। सर थोड़ा सा वो उसका गोल्ड का बता दीजिए ना, गोल्ड का। एक सर निवेदन था अमर सर, आपने जो आज सर अपने गोल्ड ग्रुप के में लिए लिखा था, क्लोजिंग टाइम क्या लेना है सर? ग्रुप में लिखा था कि आप स्विंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप एक बार हाँ, आइडिया मैंने देंगे बनाई कुछ। है, मैंने वो मतलब कि ना कल मैं शेयर कर दूंगा, मैंने 5 निकाली है और 5 ग्रेट निकाल रहा सर, हूं मैं, मतलब ग्रेट सर, ग्रेट। एनालिसिस करके कल मैं शेयर कर दूंगा वो। थैंक यू सो ठीक है मच। सर। और थैंक यू। गोल्ड एमसीएक्स, यस सर। गोल्ड एमसीएक्स, गोल्ड तो सर बुलिश ही है ना। गोल्ड का तो मैंने नहीं सर आप सर, लोगों को बताया सर कि ये मार्च टाइम, एंड सर तक। इसका टाइम निकालना है तो सर क्लोजिंग प्राइस क्या लेना पड़ेगा? वही लेना पड़ेगा ना 11 बजे का। 11 बजे का? नहीं नहीं, एमसीएक्स में निकालने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको एमसीएक्स का निकालना है तो एमसीएक्स की नहीं निकाले, इट इज मैनिपुलेटेड मार्केट। ट्राई टू फाइंड द टाइम इन एक्स यू यूएसटी। तो सर इस पे क्लोजिंग लेना है, नहीं लेना है? किससे निकालेंगे पहले तो ये बताया मेरे को, गैंजिला से। यस सर, ज्ञान जिला से, जी सर। तो गैंजिला से निकालने के लिए तो आपको ओपन और ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीवियस डे जब ये मार्केट क्लोज हो जाए, उस टाइम पर जो भी लो बनेगा, लो की टाइम को डाल दे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट डे की टाइम आ जाएगी, नंबर 1। और यहां पर सपोज मेरे लिए टाइमिंग कैंडल निकल करके आया है, मैं एक मान लेता हूं 11:45। तो 11:45 की टाइमिंग इंडियन मार्केट गोल्ड एमसीएक्स के लिए भी सेम रहेगा वो, क्योंकि मूवमेंट सेम होती है। तो 11:45 वो मेरे लिए सेम रहेगा वो।
हम लोगों को अगर इसमें ट्रेड करना है तो ट्राई टू फाइंड इन इंटरनेशनल गोल्ड एंड देन अप्लाई दैट टाइम ऑल्सो इन इंडियन मार्केट, मार्किंग द हाई एंड। ओके सर। आगे आने वाली सर 2-3 सेशन में सब क्लियर हो जाएगी वो, ठीक है। अभी राइट थोड़ी सर, सी राइट। कंफ्यूजन है प्राइस एक्शन में, इसमें उसमें सर वन क्योंकि रिक्वेस्ट सर। एकदम से नहीं है ना। सर 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 जी, एक चीज और कर दिए थोड़ा सा। एक मुझे आज का टाइम पे आई है, अब 9 तारीख पे एक लोड आ लिया है वहां पर प्राइस का सॉफ्टवेयर पे। किसमें कि कौन सी स्क्रिप्ट तो बोले? सर सर गोल्ड पे, यूएसडीटी पे। अभी के लिए मेरे पास में जो टाइम है 1940। जी जी। तो 7 मार्च का अगर मैं सेशन को अनटिक कर देना है, ठीक है, गोल्ड के लिए, तो 7 मार्च का टाइम है गोल्ड का, फॉरेक्स गोल्ड का 540 जब मार्केट ओपन होगा, देन 940, देन 1420, देन दिस एंड देन क्लोज। राइट सर, मतलब 7 तारीख, मतलब उसमें डेट चेंज नहीं करना है 7 तारीख उससे कुछ। मतलब आपके लिए 9 तारीख, ये ठीक है, मतलब कि ना आज का मैंने सर डाला है तो वो मतलब कि ना कल के लिए होगी, तो जो टाइम यहाँ पर है बार बार उसका जी कोई सर, मतलब जी नहीं, सर। मतलब अगर आप टाइम को चेंज भी करेंगे डेट को तो कोई मतलब कि ना टाइम आपके लिए सेम ही आता है। तो राइट जो राइट, जी भी सर। यहाँ पर डेट रहे तो मतलब कि आप उसका नेक्स्ट डे ले ले, बस बात खत्म। क्यों बार बार अननेसेसरी मेहनत करना है? ठीक है जी सर, सर, टाइम थैंक यू सर। सेम आता है, टाइम नहीं चेंज होता है, ओनली सर डेट चेंज। तो और थैंक यू सर। मतलब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, लर्निंग करें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इजी मतलब कि सर ना हो जैसे मैं ये जाएगी अभी बोल रहा जस्ट। था, सर जैसे ये डिग्री अब वाइज आप है। सर बाकी बोलनी सर है तो मुझको कॉल कर लेना, मैंने आपका बहुत क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया सर, बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना सर। सर ये ट्रेडिंग व्यू पे कैसे आप वो करने का अपना क्या करने का सर ये बताए ना। ट्रेडिंग व्यू पे वो इंडिकेटर आपका जो है ना वो कैसे डाउनलोड करने का है? उसको मैं सर कल की सेशन में बताऊंगा ना, इंट्राडे बीटीएसटी की सेशन सर आपकी सर कल है ना, तो मैं वहां बताऊंगा, ठीक है। ओके ठीक ठीक। सर मैं वहां पर सर कल इंडिकेटर यूज कैसे करना है, स्टॉक एक सिलेक्शन कैसे पीओबी और करना ये है, आप बोल रहे हैं ना वो। कल बताऊंगा, कल, यस 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 यस, ओके कल ओके। बताऊंगा सर, ठीक सर है, कल अब आज निफ्टी नहीं का बताऊंगा। एक्सपायरी है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है सर, कुछ तो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर ट्रेडिंग करते समय याद रखने के लिए एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी पहले मार्केट को सर क्लोज होने दे 24,200 के ऊपर में, उसके नीचे है तो आप सर जाकर के सेल साइड की प्लानिंग करें, और उसके ऊपर है तो बाई साइड की प्लान करना, 24,228, 24228। ओके ओके सर। और बाकी मैं तो मॉर्निंग में सब अपडेट तो मतलब दे ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट टेक सर, केयर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। अगर थैंक यू किसी सर। को गुड नाइट ज्यादा सर, गुड प्रॉब्लम नाइट। है तो मुझको सर कॉल कर ले, या मुझको सर व्हाट्सअप कर ले, ठीक है।